Let's start. Hello, everyone. Am I audible? हेलो Yes, good afternoon. हेलो गुड आफ्टरनून Good afternoon. मेरी आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल loud and clear. Namaskar. I am Dr. Gaurav Shah, Assistant Professor in Mass Communication. हेलो I well, Madam, जी, जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ. हाँ आवाज आ रही I welcome you all on behalf of Department of Mass Communication, School of Management Sciences, Varanasi. Friends, as we all know, that journalism has evolved through the advent of print journalism and later electronic media, television, and radio. But the greatest disruption was the arrival of internet. It changed the whole landscape of journalism. Mughals, which we call the media Mughals, who were the owner of big media houses. Now anyone can share, anyone can create, and anyone can respond to any event and can write any content. And with the arrival of Web 2.0, now the content has become dynamic. Now, within seconds, the information can be transmitted or disseminated to any part of the world. Uh, in a nutshell, now the content has become more and more democratic, and especially with the coming up of social media, WhatsApp. Now everyone is a journalist, to say. Uh, Now journalism has, I would say, crossed all the boundaries, but at the same time it has become very competitive. To address all these issues, today we have an eminent journalist, Mrs. Utkarsha Srivastava. है थैंक यू To know more about her and the proceedings, I will now pass my baton to my dear colleague, Dr. Ishant Tripathi. Sir. Thank you very much, sir. Okay. Am I audible? हाँ हाँ आपके आवाज Okay. Actually, it's been a matter of great pleasure that Utkarsha is with us. And one of the most catching points about Utkarsha is that she has, accepted our acceptance or invitation in a very short period of time. Thank you so much for accepting our invitation for this important lecture on this day. So Utkarsha has been doing journalism since past 10 years, and I would say that she is incredible in web journalism. I have seen her in past. Well, she is a digital journal with an experience of almost 10 years in mainstream media. And Utkarsha has worked with brands like ETV, One India, News 18, Live Hindustan, and presently she is with DNA News, a part of G News group. She has done skillful work in audiovisual, web journalism, and Mojo, mobile journalism. Utkarsha has been doing content production in text and video and have conducted in many celebs interview also. So Utkarsha, we are very keen to hear you, and our students will definitely, and along with the students, we will also be very much enlightened with your this lecture on this topic. So Utkarsha, now it's this virtual platform is yours, and please enlighten us with your view on web journalism and changing trends in new media.
Thank you, Ishanti. Thank you for having me here. Today, I will be discussing about web journalism and how is it different from broadcast media or print journalism. So, मेरी बात किससे किससे हो रही है, क्या मुझे पता चल सकता है? आपकी बात मैडम मास कम्युनिकेशन की फैकल्टीज, यहाँ के कोऑर्डिनेटर और जी। सारे स्टूडेंट से हो रही है। जी, अच्छा। तो स्टूडेंट से मेरी सीधी बात हो सकती है? बिल्कुल हो रही है, दे आर ऑल देयर। अच्छा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट से ये जानना चाहूंगी कि वेब जर्नलिज्म के बारे में वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने अभी तक पढ़ा है वेब जर्नलिज्म के बारे में? स्टूडेंट्स हाँ। वन बाय वन आपने आपको इंट्रोड्यूस करके मैडम की क्वेरी का आंसर करिए आप लोग। प्लीज, इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन, प्लीज फील फ्री टू टॉक। Hi, ma'am. Good afternoon. Nishta Singh from third year. Okay, hi Nishtha. Hi, ma'am. Ma'am, basically, when we talk about web journalism, it is like an editorial content which is distributed like all over internet. Like for today's, we think internet is a great source for spreading the information worldwide, not just your city, your state or country, but it is like worldwide distribution of the information. And when we talk about web journalism, it is like a vast thing which is very informative, very important, and I think most used source for the distribution of information as well as the knowledge. Right, Nishtha. So basically web journalism print और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक मिक्सचर है, बट अ रिफाइंड वर्जन ऑफ जर्नलिज्म। तो इसमें आप अपने दर्शकों से, रीडर से या वेब जर्नलिज्म की भाषा में बोले तो यूजर से इंटरैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। आप जो कुछ भी आपको आपकी बात पहुंचाने या खबर पहुंचाने के लिए हेल्प कर सकता है, आप वो मीडियम वेब जर्नलिज्म में यूज कर सकते हैं। अब वेब जर्नलिज्म में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आई एम श्योर कि आप में से कई लोग एडिटर बनना चाहते होंगे, राइटर बनना चाहते होंगे, रिपोर्टर, किसी को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा। तो अब अगर आप वेब जर्नलिज्म में काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको खबर बताने से जुड़े सारे काम आने चाहिए, जैसे कि जिसमें शामिल है वीडियो बनेगा कैसे, वीडियो एंकरिंग कैसे करेंगे आप, वीडियो में क्या क्या आप खास डाल सकते हैं जो आपके खबर को इंटरैक्टिव बनाए। इसमें टेक्स्ट, एंकरिंग, वीओ, ये सब आ जाता है। और आप एक सब्जेक्ट में एक किसी जैसे राइटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन वेब जर्नलिज्म के लिए आपको जरूरी है कि आपको खबर बताने के सारे माध्यम पता हो, उनके बारे में नॉलेज जरूर हो। तो ये वेब जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है। तो जैसा कि निष्ठा ने बोला कि इंटरनेट बेस्ड है ये वेब जर्नलिज्म, तो वेब जर्नलिज्म इंटरनेट बेस्ड है, तो ऐसे में आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि गलत आर्टिकल को प्रेजेंट करना या फेक न्यूज फैलाना, या आपने कुछ खबर कही और उसे किसी और तरीके से किसी ने इंटरप्रेट कर लिया, तो ये बहुत आसान होता है इंटरनेट बेस्ड मीडियम में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वेब जर्नलिज्म की भाषा, उस पर बहुत ध्यान दिया जाए। जैसे कि आपने कोई खबर बनाई, तो उसमें आपने अपनी अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, आपको अपनी खबर बतानी है कि ये खबर है और इसमें ये फैक्ट्स हैं, और अब आप डिसाइड करिए कि आपको खबर कैसे लेनी है। आपको एज अ जर्नलिस्ट नहीं बताना है कि इस खबर पे आपका क्या क्या राय है। जैसे कि कई लोग इंटरनेट पे अपनी राय देते, किसी भी टॉपिक पे राय देके स्टोरी डाल देते हैं, वो वेब जर्नलिज्म नहीं है। वो बेसिकली वो उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज करना है, वो वेब जर्नलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। वेब जर्नलिज्म बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, ठीक है। और इसमें वेब जर्नलिज्म में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म्स का बहुत खास योगदान होता है।
आपको दर्शक, रीडर्स या फिर वेब जर्नलिज्म में बोला जाता है, ये एक टर्म यूज होता है, यूजर्स, इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इनसे जुड़े जो कानून हैं उसकी वजह से वेब जर्नलिज्म को थोड़ा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वेब जर्नलिज्म में आप जब कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको वेबसाइट, जिस वेबसाइट के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके नियम फॉलो करने पड़ते हैं, और आपको गूगल के कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज भी फॉलो करनी होती है, और फेसबुक की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, तो वो भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो कितना रिफाइंड, कितने लेवल पे रिफाइंड होके आ रहा है आपके सामने। तो ये चैलेंजेस हैं और ये आपकी कंटेंट को और भी रिफाइंड बनाते हैं। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बजट आया है, तो मान लीजिए कि आपने एक आर्टिकल बनाया, उसमें आपने लिखा कि निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगेगा। तो ये आर्टिकल फेक है, ये फेक न्यूज में गिना जाएगा। क्योंकि क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अपनी करेंसी पे लगेगा, उन्होंने ये बोला कि डिजिटल एसेट्स पे ये टैक्स लगेगा। तो अगर आप ये खबर छाप देंगे और वो गूगल पे जाएगी, यूजर्स के पास जाएगी, तो गूगल सीधे सीधे इसको फैक्ट चेक में फेक न्यूज करार दे देगा। तो फेसबुक और गूगल दोनों की एक फैक्ट चेक टीम होती है। वो एनालाइज करते हैं कि आप जो आर्टिकल डाल रहे हैं, लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फैक्ट्स हैं या फिर आप मिसलीड कर रहे हैं या आप सेंसेशनलाइज तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें ये रिफाइंड होके जाती हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि डिजिटल एसेट को क्रिप्टो करेंसी में, मतलब क्रिप्टो करेंसी उसमें आ जाता है, लेकिन आप निर्मला सीतारमण के अगर बयान को बोल रहे हैं तो आप उस बयान को एज इट इज लिखेंगे, क्रिप्टो करेंसी उसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि वो खबर के लिए नेगेटिव हो जाएगा, वो फेक न्यूज में आ जाएगा। अच्छा, और एक दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे बिग बॉस तो आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, और कईयों ने बिग बॉस से रिलेटेड कई आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, टीवी पे देखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जाने कहाँ कहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पे आपने आर्टिकल पढ़ा बिग बॉस का विनर अनाउंस होने से पहले कि बिग बॉस की विनर ये कंटेस्टेंट होंगी, ये होने वाली है बिग बॉस की विनर, ये बन गई है बिग बॉस की विनर। तो ये आर्टिकल भी फेक न्यूज में आएगा, सेंसेशन में, मिसलीडिंग आर्टिकल्स में आ जाएगा। तो इससे आपको नुकसान होगा, आपकी वेबसाइट को नुकसान होगा। तो वेब जर्नलिज्म में ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। और इसमें वेब जर्नलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसे समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपको पता देना है अपने घर का, ठीक है? तो समझाना है कि मेरा घर यहाँ है, आप इस गली में इस नंबर के मकान पे आएंगे तो आपको हमारा घर मिलेगा, और आपको लैंडमार्क बताना है कि ये लैंप पोस्ट है, ये दुकान है। तो एज्यूम कर लीजिए कि घर आपकी एक खबर है और यूजर्स वो लोग हैं जो पता ढूंढ रहे हैं। तो गूगल क्या काम करता है कि आपके आर्टिकल्स में से एक बैकग्राउंड डेटा तैयार करता है, जिससे वो यूजर्स को आपकी खबर तक पहुंचाता है। तो ये आर्टिकल, ये डेटा तैयार होता है एसईओ से। एसईओ में होता है यूआरएल और कीवर्ड्स। जो खबर के ऊपर होता है वो यूआरएल होता है। आप कोई भी खबर खो टैब में जो आता है वो यूआरएल होता है, और कीवर्ड एक बैकग्राउंड डेटा होता है। तो इस तरह से खबर गूगल आपकी खबर दूसरों तक पहुंचाता है। तो वेब जर्नलिज्म में ये इंपॉर्टेंट है कि एसईओ का ध्यान दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए आप टीवी खोलते हैं, टीवी पे तो न्यूज आप ऐसे ही देख लेते हैं, आप कोई न्यूज़पेपर लगवाते हैं तो न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते हैं खबरें, लेकिन आप जब इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी खबरें मिलती हैं, ना जाने कितने सारे लोगों के ओपिनियन आर्टिकल्स या बहुत सारी खबरें। और आप ये इंश्योर कैसे करेंगे कि कोई यूजर मेरी तो ये सारी चीजें
वेब जर्नलिज्म के बेसिक्स हैं। आप इन पे आधार करके वेब जर्नलिज्म को समझ सकते हैं। और वैसे तो वेब जर्नलिज्म बहुत वास्ट है, उसके बारे में आप और भी पढ़ें, रिसर्च करें, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am, you are Perfect, audible. loud and clear. हाँ, तो अगर आपको वेब जर्नलिज्म से जुड़ी कोई बात जाननी है, कोई सवाल है अभी तक जो मैंने आपसे बताया, कुछ नहीं समझ आया या फिर कुछ और पूछना है तो बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंटरेक्टिव सेशन है, ये लेक्चर नहीं है, इसलिए प्लीज बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछते रहिए और मैडम को परेशान करते रहिए। प्लीज आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू हैव। Good afternoon, ma'am. Myself Shubh. हाय शुभ। Ma'am, I'm a student of first year, BA Mass Communication. Ma'am, I wanted to ask that how we can apply in companies like as a web journalist. What are the basic qualification which we need to be a web journalist? अच्छा, आप वेब जर्नलिज्म के लिए अगर अपने करियर की स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको खबर से जुड़े, खबर बताने से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शुभ, आप क्या आगे जाके वेब जो जर्नलिज्म है उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या रोल प्ले करना चाहते हैं? Ma'am, I have interest in broadcasting as well as photojournalism. ओके ओके, मतलब आप राइटिंग करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं? Anchoring. एंकरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए शुभ कि आपने एंकरिंग के लिए करियर बनाने के लिए शुरुआत की। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे कि आप पहले जानेंगे कि खबर कैसे बनती है, खबर कैसे लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसके लिए आप क्या-क्या माध्यम इस्तेमाल करते हैं। आप लिखते हैं, आप फोटो के जरिए बताते हैं, आप वीडियो के जरिए बताते हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप ये सारी चीजें कैसे करते हैं, आप कैसे वीडियो बनाते हैं, आप कैसे खबर लिखते हैं और आप ग्राफिक्स कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एंकर जो होता है वो बेसिकली फेस होता है आप एक हाउस का, तो उसको ऑब्वियसली खबर के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एक अच्छे से जहाँ पे आपको मौका मिले वहां पे आप पहले इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप के टाइम पे आप सिर्फ एंकरिंग पे ही फोकस ना करें, आप खबर से जुड़े बाकी एक्सपेक्ट भी जरूर देखें। Okay. Thank you. और किसी को पूछना है तो? Yes, ma'am, this is Dr. Avinash here, coordinator of the mass communication program at SMS. First of all, thank you very much for accepting our invitation on a very short notice. Thank you, the pleasure is all mine. And particularly when the environment is so charged up, you know, there are elections happening in states, 4 states at this point of time. The budget session of the parliament is going on, right? And if I am to correct you, some fiery speech has been made by the leader of the opposition in the parliament yesterday. So I'm sure कि काम आपके पास बहुत ज्यादा होगा इस वक्त कंटेंट के पर्सपेक्टिव से। मैडम, what I wanted you to focus on, कि let us say if Shubh as a student of SMS Varanasi Mass Communication Department जी, wanted to start his own web channel. Okay. Okay. So let us say, for example, at this point, locations of events which are actually happening nationally, right? Probably he'll have to download some content from some other news portal, or he'll have to gather some information from the news. Let us say if Shubh wanted to start his own web channel for covering the local events or local news which is happening around in and around Varanasi. So what is the set of preparation that Shubh needs to have? Number one, what is the type of equipment that Shubh needs to carry? Number two. Number three, if just uploading the content on maybe a YouTube or maybe having it on Facebook, simply I don't think is not going to suffice the purpose, but there has to be a lot of optimization that needs to be done so that people actually like and subscribe
and many people on the social media see it. So please share some inputs, because what we are seeing for the many years now, that like you have Gauravji, when he was giving or Ishan, when he was giving an introduction, he said that you are also associated with Mojo. So when we see Mojo, we only see Barkha Dutt as one individual, right, moving around from one place to another. Now she has been actually doing it in a studio setup as well. Secondly, another popular web channel that we are seeing on YouTube is Lallan Top. So they were also actually doing on ground reporting. Now they have also gone to a studio setup. So we also have a very not a large studio, but with a very small studio setup at our institute also. So keeping all these things in mind, how can our students go ahead with this? थोड़ा मैम मैं चाहता हूँ उस पे फोकस करें आप. हाँ, राइट. तो आपने बोला कि अगर किसी को अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, अपना चैनल लॉन्च करना है, राइट. तो सबसे पहले तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. जैसे आप अगर इलेक्शन के टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, अपना चैनल, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बताने जा रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, और दूसरा कि कितनी क्रेडिबल होगी. और ये बहुत बेसिक सी बात है. ये मतलब ये तो एक स्टार्ट करने के लिए पहला कदम है कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, एक सोर्स ऑफ क्या होगा और वो कितना क्रेडिबल होगा. और अगर वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ये बंदा दे रहा है और इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये इसके पास इसका राइट है कि ये इंफॉर्मेशन हमें दे सकते. तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. दूसरा, आप कहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं. कई लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कई लोग फेसबुक पेज बनाते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं. तो आप पहले ये दूसरा स्टेप डिसाइड करेंगे. और तीसरा कि आपके पास इंफॉर्मेशन के अलावा फोटोज, वीडियोस, क्योंकि वेब जर्नलिज्म जो है वो सबका कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट का, वीडियोस का, फोटोज का. तो आपके पास ये सारे चीजें कहाँ से आएंगी. और नेक्स्ट स्टेप है कि आपको वो वेबसाइट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं. जैसे आपको आर्टिकल्स अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको वीडियोस क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको फोटोज क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको उसके राइट्स लेने होंगे, उसे खरीदना होगा, ये सब चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने खबर बना दिया, वेबसाइट पे डाल दिया, तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सारे यूजर्स आ जाएंगे, सब मेरी खबर पढ़ के जाएंगे. आपको वो खबर प्रमोट करनी हो, तो जाके यूजर्स को पता चलेगा, अच्छा ये नया चैनल है, यहाँ पे हमें जाना है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं. तो ये बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, ये इलेक्शन से रिलेटेड, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड. तो आपको उसे प्रमोट करना होगा, और प्रमोट करने के लिए आपके चैनल के हिसाब से, आपके चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, आपके चैनल के टेस्ट के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, आपको वो चूज करना होगा. तो गूगल, फेसबुक और सोशल मीडिया सर्च इंजन के अलावा बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो खबर को प्रमोट करते हैं. जैसे कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ऐप पे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं. तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट और प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं. आपको उन्हें प्रमोट करने के लिए प्लानिंग करनी होगी कि प्रमोट कैसे करना है. ये हो गया. अब आपकी खबर लिख गई, फोटोज आ गई, वीडियो आ गया, अब प्रमोट हो गया. अब आती है एथिक्स की बात. तो आप अगर कोई खबर बता रहे हैं, तो इनिशियली कई लोग ये गलती करते हैं कि आपका एक पर्सपेक्टिव होता है, हर हाउस का एक पर्सपेक्टिव होता है. आपको वो पर्सपेक्टिव दिखाना भी है, बट आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है. इसको भी ध्यान में रखना होगा. तो ये सारी चीजें हैं अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है उसको लेके. तब कॉपीराइट बहुत ध्यान रखना होता है. वेब जर्नलिज्म में फोटोज पे बहुत जल्दी कॉपीराइट आ जाता है, तो ये बहुत ध्यान रखना होता है. हाँ जी. और किसी को अपना करियर शुरू करना है, तो उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्हें बतौर राइटर अपने आप को स्टैब्लिश करना है, एंकर स्टैब्लिश करना है, या फिर वीडियो एडिटर बनना है, फोटोग्राफर बनना है. तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड होनी चाहिए. और जो इक्विपमेंट्स हैं, वेबसाइट लॉन्च करनी है तो पहले फोटोज,
कैसे लेनी है, वीडियो कैसे क्रिएट करने हैं, और वो खबर अपलोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो उसका राइट्स लेने पड़ेंगे आपको। आपको फोटोज के राइट्स लेने पड़ेंगे, फोटोज के राइट्स लेने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो लेने पड़ेंगे। और आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा उसे तैयार करना पड़ेगा। तो ये इक्विपमेंट्स हैं। आई गेस आई एम होपिंग कि मैंने आपका सवाल का जवाब ठीक से दिया। या मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, ये कॉपीराइट का इशू कैसे हैंडल करेगा कोई एक व्यक्ति? अच्छा अच्छा, कॉपीराइट्स का इशू वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि कई बार जैसे कि मान लीजिए एक सेलिब्रिटी को स्पॉट किया गया, कहीं पे देखा गया, तो उसे पेपराजी ने क्लिक किया, का जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है उसने, तो आपने अगर दूसरे वेबसाइट के एंगल के हिसाब से वो फोटो लगा दी तो वो उस पे कॉपीराइट आ जाता है क्योंकि वो दूसरे का फोटो है। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये फोटोज लाके देगा, तो वो ही फोटो हमें यूज करनी है। और दूसरी बात ये है कि आपको कई बार फोटोज आई स्टॉक करके एक वेबसाइट होती है, उसके राइट्स लिए जाते हैं। आई स्टॉक जैसी कई और वेबसाइट हैं फोटोज के लिए, तो उनसे आपको फोटोज मिल सकती हैं। तो कभी भी आप ये ना करें कि किसी वेबसाइट के आर्टिकल पे गए और वहां से फोटो डाउनलोड करके आपने अपने आर्टिकल में लगा दी, ऐसा नहीं कर सकते। गूगल पे जाके डाउनलोड नहीं कर सकते। आप फेसबुक पे किसी की फोटो बिना इजाजत के नहीं ले सकते, आपको क्रेडिट देना होगा और उसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं फोटोज वगैरह यूज करने के लिए। जैसे मैम कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक एनडीटीवी की वेबसाइट से एक स्क्रीन ग्राब लिया, एक फोटोग्राफ लिया, लेट अस से अबाउट सम सेलिब्रिटी और मे बी सम पॉलिटिशियन। अगर इफ यू वांट टू यूज दैट फोटोग्राफ इन आवर ओन स्टोरी, so if what you are correctly saying कि we need to give credit to NDTV that this photograph or source of this photograph is NDTV's website or something like that, we need to mention that. एक्चुअली नहीं, अगर हम किसी सेलिब्रिटी के फेसबुक पेज या किसी इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी से ले रहे हैं तो सेलिब्रिटी को क्रेडिट दे सकते हैं क्योंकि वो उसकी अपनी फोटो है, किसी एक की फोटो है। अब किसी वेबसाइट की फोटो हम ऐसे नहीं ले सकते। ज्यादातर वेबसाइट्स ही कॉपीराइट क्लेम करते, वो हमें अपने रिपोर्टर, अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ही लेनी पड़ेगी। एनडीटीवी की फोटोज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, किसी सेलिब्रिटी के मतलब सोशल अकाउंट पे जाके उसे क्रेडिट देके ले सकते हैं। In case ma'am, let us say for example I have taken a photograph और उसी एंगल से, उसी फ्रेम के हिसाब से, उसी कॉन्टेक्स्ट में किसी एक वेब जर्नलिस्ट ने भी वो फोटोग्राफ ली है एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, और डिस्प्यूट अगर आता है तो हाउ डू वी सॉल्व दैट? आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो फोटो है वो आपकी है और राइट, जो दूसरी फोटो है वो भी सेम है। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी फोटो है तो आप उसका प्रूफ दिखा सकते हैं कि ये हमारी फोटो है और इस सोर्स से आई है, और उस हिसाब से तो आपकी भी फोटो सही है, फिर उसकी अगर उसके पास सोर्स सही है तो उसकी फोटो सही है। मैम, मैंने सुना ये है कि कुछ स्पेशल कैमरा इक्विपमेंट्स आते हैं जिनमें जियो टैगिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ वो भी जियो टैगिंग होती है मैम फोटोग्राफ्स की आजकल? हाँ होती है, बट उसमें भी कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते हैं। उसमें भी आ जाते हैं कॉपीराइट हाँ के? हाँ हाँ, कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते हैं उसमें भी। हम्म। अच्छा मैम, hypothetically speaking, let us say we know that there has been one very recent story जो एक महीना पहले काफी हाईलाइट हुई थी। We were talking about the death of CDS General Bipin Rawat, right? So कई बार ऐसा हुआ कि apart when we were actually following the story, there were मतलब बड़ी डिफिकल्टी हो गई हमें एज मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स ये पता करने में किस स्टोरी को हम बिलीव करें, किस स्टोरी को हम बिलीव ना करें। डिफरेंट डिजिटल नैरेटिव्स। प्लेटफॉर्म्स। हाँ जी। हाँ जी, मतलब हाँ ये फैक्ट्स भी थे, नैरेटिव्स भी थे आपके, व्हाट शुड आई से, कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी थी, तो इट वाज वेरी अच्छा, डिफिकल्ट। तो कैसे मैडम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम कि मतलब एक स्टोरी जेन्युइन है और जब
मतलब ध्यान में रखते हुए, उसकी सैंक्टिटी को ध्यान में रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कई वेबसाइट पे आर्टिकल्स देखे होंगे, कई आप सर्च इंजन यूज करते हैं तो उसमें आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स की हेडलाइन में आपने कई बार एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क ये सब देखा होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात की गई है और उन्होंने कहीं से उठा के कोई सोर्स ले लिया कि इस सोर्स के हिसाब से हम ये कह रहे हैं, बट हम ये कह नहीं रहे, तो ये एथिक्स की बात है कि जिसे जिसे बोलना होता है कि तो कोई भी सोर्स उठा के बोल सकता है, बट ये एथिक्स की बात है। और बात आती है लीगलिटीज की, तो लोग लीगल ट्रबल से बचने के लिए हेडलाइंस में एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कई बार। तो ये एथिक्स के खिलाफ है। इसे इसे गूगल की पॉलिसीज भी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, फेसबुक की पॉलिसीज भी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कोई एक बुक लॉन्च हुई थी काफी पहले, तो उसमें किसी ने कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया था उनके बारे में, या किसी वेबसाइट ने कुछ बोल दिया कि उसने किसी सीनियर जर्नलिस्ट का या किसी सीनियर उनके फील्ड का किसी का बयान ले लिया, या फिर उन्होंने कुछ बोला था बहुत पहले वो लिख दिया। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं आर्टिकल्स में। उसके आपको उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले ये चीजें देखें कि उन्होंने क्या सोर्स दिया है। मतलब वो खबर में जरूर लिखते हैं, अगर कोई ऐसे सेंसेशनल बात कह रहे हैं तो वो खबर में जरूर लिखेंगे कि हमने ये सेंसेशनल बात क्यों कही है, हमारा सोर्स क्या है, हम कहाँ से ये ढूंढ के लाए हैं। और दूसरी बात की हेडलाइन में आपको दिख जाएगा कि कई लोग क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, ये चीजें आप पहचान सकते हैं। और तीसरी बात कि आप अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं, तो आप उस बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आपको दूसरे तीसरे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। और एक गूगल का एक फीचर है, अगर आपको जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई बहुत पुराने वीडियो वायरल हो जाते हैं और बता दिया जाता है कि ये अभी का वीडियो है। जैसे कि रिसेंटली एक सेलिब्रिटी ने भी ऐसा किया था, बाद में उसे स्वरा भास्कर ने ऐसा किया था कि किसी को पीटे जाने का वीडियो शेयर कर दिया था, उसने किसी और एंगल से जोड़ दिया था उसे। तो बाद में वो सामने आया कि वो वीडियो एक्चुअली दूसरे इंसिडेंट का था। तो ऐसे कई बार होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल में एक बैक सर्च का ऑप्शन होता है, जैसे आप फोटोज डाल सकते हैं, एक फोटोज का ऑप्शन होता है, फोटो डाल सकते हैं और फोटो के हिसाब से वो सर्च करके आपको स्टोरी दिखा देता है कि आप ये स्टोरीज बनी है इस फोटो को लेके। तो उससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं कि ये स्टोरी, ये फोटो इस फोटो से ये स्टोरी जुड़ी है, या इस वीडियो से ये स्टोरी जुड़ी है या नहीं, क्या ये फेक खबर है या नहीं। तो इस तरह से जान सकते हैं और ये चीजें होती हैं। मैडम, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वेब जर्नलिज्म हो, एक फाइनल न्यूज पब्लिश होने से पहले उस न्यूज को फाइनल होते होते कितने स्टेजेस से हेलो। हाँ मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, कट गई थी बीच में। हाँ तो आप मैम, पूछ रहे हैं कि एक न्यूज को कितने लेवल से गुजरना पड़ता है। फाइनल पब्लिश होने से पहले, चाहे वो राइट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वेब जर्नलिज्म हो। राइट राइट। देखिए हर मीडियम का अलग अलग तरीका होता है खबर को रिफाइन करने का। जैसे प्रिंट में कई बार प्रूफ रीड की जाती है, और ब्रॉडकास्टिंग मीडियम में प्रोड्यूसर होता है उसके लिए अलग से। वैसे ही वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खबर को पहले तो आती है रिपोर्टर से, रिपोर्टर से आती है हमारे एडिटर के पास, एडिटर से आती है जो खबर लिख रहे हैं उनके पास, लिखने लिखने वाले के बाद खबर अगर जब लिख जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद खबर जाती है जो अपलोड कर रहे हैं उनके पास, उनको भी प्रूफ रीड करनी होती है, उससे उससे जुड़ी जो फोटोज हैं, स्टोरी जाती है पब्लिश होने के बाद, जब वो स्टोरी जाती है सोशल मीडिया। तो जो सोशल मीडिया शेयरिंग पे बैठे हुए हैं उन्हें भी ये देखना पड़ता है कि ये खबर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जाने लायक है या नहीं है। इस खबर में ये फोटो ठीक नहीं है, ये गूगल पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, ये फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से नहीं है। ये भी चीजें मैटर करती हैं एक खबर को आगे बढ़ाने में।
मैम इनिशियल लेवल पे आपकी टीम कितनी बड़ी होनी चाहिए? इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ करियर इन वेब जर्नलिज्म, कितनी टीम होनी चाहिए आपकी, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, थोड़ा सा वो बताइए please। अच्छा, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब रिपोर्टर बहुत जरूरी है। वो एक वेबसाइट की, एक चैनल की बेस होते हैं। तो आपके पास क्रेडिबल अच्छे रिपोर्टर्स होने चाहिए। आप अगर किसी टॉपिक, मतलब आप इलेक्शन के टाइम पे अगर अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं तो ये जरूर देखें कि आपके इलेक्शन को कहाँ कहाँ से कवर करना है और कौन कौन से रिपोर्टर कवर कर सकते हैं। रिपोर्टर्स के पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए प्रमोट करने के लिए। और आते हैं डेस्क पे। तो जब खबर बन के आती है डेस्क पे, तो डेस्क पे आपके पास राइटर होने चाहिए, अ, आपके पास वीडियो एडिटर होने चाहिए, फोटो एडिट करने वाला होना चाहिए, अपलोड करने के लिए होना चाहिए। कई बार होता है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग खबर लिखने के साथ साथ अपलोड करने का भी सीखते हैं। हम एडिट करने का भी सीखते हैं, फोटो एडिट करने का भी सीखते हैं। हम इन वीडियो पे वीडियोस बनाना भी सीख लेते हैं, ताकि हमें, जैसे मैंने अपने उसमें पहले भी बताया कि आपको वेब जर्नलिज्म में सारा कुछ आना चाहिए, मतलब खबर बताने की सारी प्रक्रिया आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम फिर राइटिंग के लिए, राइटिंग हो गई, फोटो वीडियो के लिए होना चाहिए, और उसके बाद अपलोडिंग के लिए आपके पास एक टेक टेक टीम भी होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर वो कहीं क्रैश हो गए, आपकी वेबसाइट कहीं क्रैश हो गई या कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उसे संभालने के लिए होना चाहिए। जो ज्यादातर बहुत हर डिजिटल प्लेटफॉर्म की में प्रॉब्लम्स आती हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती है प्लेटफॉर्म पे। और एक एक होना चाहिए आपके लिए, आपके पास फैक्ट चेक टीम। जो आप कोई भी आर्टिकल अगर आपको मिल रहा है किसी भी सोर्स से, तो उसे ये चेक करना चाहिए कि ये आर्टिकल कहाँ से है, कितना क्रेडिबल है या नहीं है। और सोशल मीडिया टीम बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपनी वेबसाइट बिजनेस के एंगल से आगे बढ़ानी है, तो सोशल मीडिया टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कुछ बेसिक रोल्स हैं। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। आप प्लीज सबके गो सवालों अहेड का एंड डू सही। सो। हाँ जी। ओके मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ, तो आवाज आ रही है। एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा था अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कि हाँ हाँ। प्लीज टेल मी व्हाट कैन द अपॉर्चुनिटीज दे कैन हैव इन वेब जर्नलिज्म। कि वो आजकल हम लोग जैसे देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, जैसे टेलीविजन में, जैसे न्यूज 18 में भी आपने काम कर लिया हुआ है, और जी न्यूज में भी, तो सबके अपने वेब पोर्टल भी है आजकल लॉन्च हो चुके हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम पैरेलल एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चीजें चल रही हैं और उसके वेब प्लेटफॉर्म भी उसके अलग अलग चल रहे हैं। So how can they means what kind of opportunities they can have? Please इस पर थोड़ा सा बता सकते हैं। अच्छा, अ, जैसे आज 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 के टाइम में कोई भी बड़ा जर्नलिस्ट है, कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट है, तो कई लोगों के फेसबुक पेज या सोशल मीडिया पेजेस बहुत पॉपुलर होते हैं। आपने ये देखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अगर वेब में डीप नॉलेज चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होगा। और आपको सिर्फ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। अगर आप कहीं पे भी कुछ आपसे सवाल पूछा गया या आपको कहीं पे जवाब देना हुआ, तो आपको दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहना होगा। और जैसे आपको अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या पेज स्टार्ट करना है, या कुछ वेबसाइट स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको पहले एक टॉपिक सोचना होगा कि आपको इस टॉपिक पे आपको अपना पेज स्टार्ट करना है, उस पे सेंट्रिक रहना होगा। और वेबसाइट इज अ बहुत वास्ट टॉपिक। आपको वेबसाइट में कई आपके अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, आपके कई अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो वेबसाइट तो एक दूसरी बात हो गई। अगर आपको अपना कोई चैनल स्टार्ट करना है, तो आई गेस उसमें आपको पहले एक टॉपिक सोचना होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप
पहले डिसाइड कर लीजिए आपको कौन से फील्ड में जाना है, क्योंकि राइटर बन सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं, आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको बेस लेवल पे क्या काम करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए वेब जर्नलिज्म में, सबके रोल्स के बारे में। बट आपको एक पहले डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंटर्नशिप के ऑप्शंस निकालते रहते हैं। आपको इंटर्नशिप सबसे पहले करनी चाहिए। आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग के बारे में सीखना चाहिए कि एक खबर कैसे रिपोर्ट की जाती है, खबर कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है। आप इंटर्नशिप के टाइम पे ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और इंटर्नशिप के टाइम पे सिर्फ एक चीज से स्टिक मत रहें। जैसे कि आप डेस्क पे गए हैं तो आप फील्ड वर्क के बारे में भी जाने। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं फील्ड पे कुछ वर्क करना चाहता हूँ, तो आपको वो एक पर्सन के साथ रख देंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, आप फिर डेस्क पे आके सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू मैडम। मेरा भी ये क्वेश्चन था गौरव। हाँ, जो वेब जर्नलिस्ट के लिए निश्चित तौर पे वेबसाइट पर वो अपना कंटेंट लिखेगा, तो वो व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए? तो नेचुरली है कि इट इज डिफरेंट मच मोर। वेब का जो कंटेंट होता है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएट किया जाता है। ये बताने में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि प्लीज मैं भी बेसिकली कंटेंट ही लिखती हूँ। प्लीज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जाता है। तो वेब में क्या होता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग आपकी खबर पढ़ने आए। और खबर पढ़ने आए, आपको तो पता ही है कि इंटरनेट पे तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, लोग आपकी खबर क्यों पढ़ने आएंगे? तो उस हिसाब से आपको अपनी खबर बनानी है। आपकी खबर में हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी खबर में जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप इंट्रो लिखेंगे खबर के बारे में, तो इंट्रो में आप सारी चीजें नहीं बताएं। आप इंट्रो में बताएं कि ये खबर किस बारे में है, ये फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं। आप इंट्रो में सारी चीजें ना बताएं। फिर आप अपनी खबर को डिवाइड कर लें कि आप इस खबर के बारे में ये फैक्ट एक पैराग्राफ में बताएंगे, ये फैक्ट दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे, और ये फैक्ट तीसरे पैराग्राफ में बताएंगे। खबर लिखने का फॉर्मेट ऑडियंस के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी जो फॉर्मेट है वो, उसमें आप सब हेड्स दे सकते हैं, आप बीच बीच में फोटोज लगा सकते हैं। अब तो ग्राफिक्स का भी ऑप्शन आ गया है, आप इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स बनवा सकते हैं, बनवा के आप खबर में आप उसको लगाइए। और इम्पोर्टेंट होता है खबर में, एक यूजर आ गया, आपको उस यूजर को पकड़े रखना है, मतलब वो यूजर जाने नहीं देना है। तो इससे आपकी खबर की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, आपके खबर पे यूजर्स बढ़ते हैं। तो उसको पकड़े रखने के लिए आप क्या आप अपनी खबर में अच्छा कर सकते हैं, अच्छी लिखावट के साथ प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वेब जर्नलिज्म में। अब इलेक्ट्रॉनिक में तो किसी ने खबर बोल दी, और प्रिंट जर्नलिज्म बेसिकली बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से बातें करता है, मतलब आपको संपादकीय पढ़ने को मिल जाती है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है। बट आपको वेब जर्नलिज्म पे दोनों मिलता है। तो आप अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें ये भी देखना पड़ता है कि यूजर्स बंधा रहे, हमारे पास जाए नहीं, सेशन बढ़े। सेशन होता है कि एक यूजर कितनी देर तक हमारे पास रुक रहा है, उससे सेशन बनता है। सेशन से फिर वेबसाइट को फायदा होता है, आपके आर्टिकल को तो फायदा होता ही होता है। और होता है जैसे कि एक आपको, जब आप एक खबर अपलोड करेंगे, जैसे कि आप वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, मैंने बोला कि आपको एक खबर वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। एक होता है यूआरएल, तो उस खबर का एड्रेस आप क्रिएट करते हैं यूआरएल में। कि यूआरएल में होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बजट की खबर है कि निर्मला सीतारमण बजट दे रही हैं, तो आप यूआरएल में बताएंगे कि निर्मला सीतारमण बजट 2022, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख देंगे। और होता है कीवर्ड। कीवर्ड से गूगल सर्च करता है कि अच्छा ये आर्टिकल इस बारे में है,
और ये यूजर इस बारे में सर्च कर रहा है, तो इसको ये आर्टिकल दिखा सकते हैं। तो वो कीवर्ड वो तय करता है कि गूगल आपका आर्टिकल उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो वेब जर्नलिज्म में कंटेंट लिखने जितना ही इम्पोर्टेंट है, यूजर्स को बांधे रहना, एसईओ इम्पोर्टेंट है, आपको खबर को इंटरेस्टिंग बनाना इम्पोर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कई लोग गलत फैक्ट्स लिख देते हैं या गलत भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। ये बहुत होता है डिजिटल जर्नलिज्म में कि मिसलीडिंग हेडलाइंस, सेंसेशनल हेडलाइंस, इन सब से बचना होता है। एथिकल भी और बाकी जो आपका आर्टिकल प्रमोट कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज के हिसाब से भी। तो ये होता है फॉर्मेट। मुझे पर्सनली डिजिटल कंटेंट का फॉर्मेट जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। मैम उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कीवर्ड्स, हाँ, हाँ, कीवर्ड्स, तो ये जैसे कि रोज नई नई न्यूज आती है, अब एक कंटेंट राइटर को न्यूज पोर्टल के लिए लिखता है, तो कैसे नए नए कीवर्ड्स इजाद करे, कहाँ से लाए, उसके लिए क्या कोई प्रैक्टिस है ऐसी? है कि आज कौन से कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप जा सकते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे, तो आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड्स हैं आज के, और ट्रेंड्स में आपको एक खबर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर कीवर्ड्स लिखे होंगे कि अच्छा अगर विराट कोहली से जुड़ी खबर है तो विराट कोहली कीवर्ड है, मैच, क्रिकेट मैच, और ये कौन सा मैच है, ये कीवर्ड सारे लिखे हुए दिख जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना आर्टिकल तैयार कर सकते हैं कि ये कीवर्ड जरूर होने चाहिए हमारे आर्टिकल में। Thank you so तो much. ये Thank you so much. I think Shubh has asked some question. Nishtha asked the question first. So Nishtha, you can unmute yourself and ask the question to ma'am. Yes. Sure, sir. Thank you, sir. Ma'am, when we are talking about web journalism, there is app developing concept. Like we create an app in web journalism for like our particular the website, and then we proceed to app developing, or is it like a straight to app developing and then we can have our own set where we can publish the informations or articles like that? राइट। तो निष्ठा, ये जो ऐप और वेबसाइट के बारे में आप बात करी, ये पूरी प्रोसेस है। आपकी एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एक पूरी प्रोसेस है। आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसमें सेक्शंस बनाने हैं, उसमें आपको ऑडियंस टारगेट करनी है, और टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से आपको ऐप डिजाइन करवाना है। Right, तो ma'am. ये एक पूरी वेबसाइट की प्रोसेस होती है, तो उसमें ये इंक्लूड होता है। तो बेसिकली आपको वेबसाइट तैयार करने के साथ ही ऐप डिजाइन के लिए भी करना डिजाइन के लिए प्रोसीड करते हैं। देन ऑल्सो मैम ऐप डेवलपमेंट में भी वी फेस कॉपीराइट इश्यूज। ऐप डेवलपमेंट में हाँ, ऑब्वियसली वी फेस कॉपीराइट इश्यूज। ऐप बेसिकली आपकी वेबसाइट का है, तो वेबसाइट के अंदर अगर कोई कॉपीराइट इशू आता है तो ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर भी कॉपीराइट इशू आता है। कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं। यस, थैंक यू मैम। Shubh, please unmute yourself and ask your question to ma'am. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. Please go ahead. Yes, ma'am. I had a question that बहुत बार ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि जब नेट सर्विसेज हमारी बैन हो जाती हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, लाइक CAA और NRC के प्रोटेस्ट के टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारा नेट सर्विसेज बंद हुई थी। तो एट दैट टाइम वेब जर्नलिस्ट क्या करते हैं, मतलब? वेब जर्नलिस्ट, इंटरनेट तो आई गेस उस टाइम पे ज्यादा टाइम के लिए बंद नहीं हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेब जर्नलिज्म तो पूरा इंटरनेट बेस्ड है। आप अगर मोबाइल खोलते हैं तो आप खबर पढ़ पाते हैं, आप ऐप खोलते हैं तो आप खबर पढ़ पाते हैं, और इन सब के लिए आपको जरूरत होती है इंटरनेट की। तो आई गेस अगर इंटरनेट बैन हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो बहुत बड़ा थ्रेट है वेब जर्नलिज्म के लिए। और आई गेस आज के टाइम में जब ई पेपर भी आ गया है, और वेब जो टीवी चैनल्स भी सोशल मीडिया पे हैं, उनको वहां से रीडर्स, यूजर्स मिल रहे हैं, तो ओके मैम, एंड वन मोर क्वेश्चन मैम। हाँ हाँ। कि मैम वेब जर्नलिस्ट का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है कि हैंडलिंग द सोशल मीडिया ऑफ एनी न्यूज कंपनी,
मतलब लाइक आजकल इंस्टाग्राम पे भी सारी न्यूज कंपनीज आ गई हैं, एनडीटीवी और भी हैं, तो क्या उसके अकाउंट को हैंडल करना भी वेब जर्नलिज्म का काम होता है, जर्नलिस्ट? हाँ, बिल्कुल 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 काम होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको एक वेबसाइट के लिए टीम बनानी हो तो उसमें सोशल मीडिया मैनेजर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो आपकी खबर सोशल मीडिया पे कैसे जा रही है और सोशल मीडिया की कौन-कौन सी पॉलिसीज को फॉलो कर रही है और कौन-कौन सी पॉलिसीज का उल्लंघन कर रही है, ये इंश्योर करना और ये सारी चीजें देखने के बाद उस खबर को यूजर्स गूगल को बताना कि मेरी खबर आई है और आपकी पॉलिसीज के हिसाब से है और आप अभी से आगे बढ़ाइए। तो ये काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट के पास गई नहीं, यूजर्स नहीं मिले, रीडर्स नहीं मिले, तो क्या फायदा, है ना? तो इसलिए सोशल मीडिया मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है एक वेबसाइट के लिए। यस मैम। स्टार्ट कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, सो हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो मैम फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड इंटर्नशिप? इंटर्नशिप के लिए आजकल तो सारे मीडिया हाउसेज आप लिंक्डइन पे मौजूद रहिए। आप कई बार फेसबुक पे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एड्स निकाले जाते हैं और खासकर लिंक्डइन पे होता है। तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, तो वहां पे आपको आप फॉलो करिए आपके इंटरेस्ट जिस वेबसाइट में इंटरेस्टेड हो उनसे रिलेटेड पर्सन्स को फॉलो करिए, देखते रहिए, अपडेट रहिए तुरंत कि हाँ अच्छा इसका ये पोस्ट आया है, अच्छा ये रिक्वायरमेंट आई है। तो उस हिसाब से जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आप वेब जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक्टिव रहना होगा डिजिटल मीडिया पे। तो आप वहां पे एक्टिव रहिए। आई गेस जितने जितने पोर्टल्स में मैंने काम किया है, सारे लोग ही टाइम टू टाइम निकाल इंटर्न्स को उनकी, तो आपको वहां पे मिल जाएगा आसानी से। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। Ananya Sharma, please ask your question. Good evening. Ananya, could you please speak louder, beta? We can't hear. गुड इवनिंग अनन्या। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग कीवर्ड्स की बातें करते हैं तो लाइक अगर हम लोग जनरल कीवर्ड्स यूज करेंगे तो क्या हम लोगों की न्यूज़ सिंपल और नॉर्मल कॉमन नहीं लगेगी? ऑडियंस अट्रैक्ट करने में ये नहीं होगा तो ऑडियंस कैसे हमारे हमारे स्पेशल कीवर्ड से अट्रैक्ट होगी? कुछ यूनिक अनन्या आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। आई कैन हियर कि आप कीवर्ड्स के बारे में कुछ पूछ हाँ रही हैं। मैम, what she is trying to say is that like there are some general कुछ जनरल कीवर्ड्स हैं जो सब लोग यूज कर रहे हैं। तो जब हम अपने लिए कीवर्ड्स यूज करें तो किस चीज का ध्यान रखें कि हमारे कीवर्ड्स जो है ज्यादा अट्रैक्टिव लगे टू द टारगेट ऑडियंस? इज दैट अच्छा। करेक्ट अनन्या? यस सर। या तो कीवर्ड का रोल जो होता है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता है। ये कीवर्ड्स का रोल होता है कि आपका आर्टिकल सर्च इंजन पे अपीयर हो, ज्यादा से ज्यादा सर्च किया जाए, सर्च करने के लिए होता है कीवर्ड्स का यूज। तो कीवर्ड्स अट्रैक्टिव नहीं, आप कह सकते हैं कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बिग बॉस की विनर पे कीवर्ड है, तो बिग बॉस की विनर तेजस्वी प्रकाश, हाँ वो बनी है। तो आप कोई आर्टिकल लिखेंगे तो कीवर्ड बेसिकली बैकग्राउंड डेटा है, आपके आर्टिकल में कीवर्ड नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड डेटा है, वो आपके सर्च इंजन में आने के लिए। तो आप बिग बॉस 15 लिखेंगे, तेजस्वी प्रकाश लिखेंगे, तेजस्वी प्रकाश से रिलेटेड लोग जो सर्च कर सकते हैं, आप एक रीडर्स की तरह सोचिए। जैसे आप कुछ आपको तेजस्वी प्रकाश के बारे में जानना है तो आप क्या सर्च करेंगे, उस हिसाब से आप कीवर्ड में उनकी उनकी टीवी सीरियल्स, उनकी आने वाले प्रोजेक्ट्स और उनका इंस्टाग्राम, उनकी फोटोज, लोग जो सर्च करेंगे, जो सर्च कर सकते हैं, आपको यूजर्स की तरह थिंक करना होगा एसईओ लिखते वक्त। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके Okay, ma'am, Thank you.
I have a student, Pragya. She wanted to ask you something. Pragya, please unmute yourself and ask the question to ma'am. Yes, sir. Ma'am, my question is, when we write an article on a particular topic, so how to create that articles in a such pattern that it becomes more impactful to the audience, and how to select a headline which may create more impact while reading. ओके 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 तो आप आर्टिकल कैसे लिखना है जो ऑडियंस को इम्पैक्टफुल लगे। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप आर्टिकल वेब का जो कंटेंट होता है वो इंटरेस्टिंग इसलिए होता है, लोग ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे सर्वेज में आया है कि वेब के जो आर्टिकल्स होते हैं वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वेब में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक का और प्रिंट का। मतलब अगर आप कोई खबर बताना चाहते हैं तो आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग सी फोटो, ठीक है, उसके साथ एक इंटरेस्टिंग सा ग्राफिक। आप बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ उसका ग्राफिक बनवा सकते हैं। आप ग्राफिक से आपको देख के जो समझ में आता है वो पढ़ने में कई लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, कई लोगों को पढ़ना नहीं होता है, सुन के समझना होता है, वीडियो देखना होता है। तो आप ये सारी चीजें अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं। और एक होता है कि कंटेंट लिखने का जो ट्रेंड होता है वो बदलता रहता है। जैसे कि हम आर्टिकल में आज जैसे हम एक आर्टिकल बनाया, उसमें हम सब हेड में दे देते हैं, पॉइंटर्स में दे देते हैं, पॉइंट्स में लिख देते हैं कि जितना आसान हो सके आसान भाषा में अपने रीडर को समझा सके कि आप जो खबर ढूंढ रहे हैं वो ये खबर है और आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं और आपको वीडियो में भी मिल रहा है, आपको ग्राफिक में भी मिल रहा है, आपको फोटो में भी मिल रहा है। तो ये इम्पैक्टफुल होता है। और दूसरी बात हेडलाइंस की बात है, तो हेडलाइंस के लिए गूगल और फेसबुक का जो क्राइटेरिया होता है हेडलाइंस कौन सा आर्टिकल अच्छा है उसको लेके वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि गूगल पे कीवर्ड्स चलते हैं और फेसबुक पे आपने देखा हो हैशटैग चलते हैं, हैशटैग्स वगैरह चलते हैं। तो फेसबुक पे लोग बहुत ज्यादा सेंसेशन नहीं क्रिएट कर सकते, आप गूगल पे मिसलीड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है हेडलाइन में। और एक आप हेडलाइन अगर कुछ बनाते हैं तो आप एक सस्पेंस रख सकते हैं हेडलाइन में, मतलब मिसलीड ना करके सस्पेंस रख सकते हैं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग हो जाती है हेडलाइन। तो ये सब आप कर सकते हैं। Is there a certain limit of words which we should keep in our mind while writing an article? Word limit. वर्ड लिमिट ओके, दिस इज अगेन गूगल पॉलिसी कि आप अगर आर्टिकल लिखते हैं तो वो कोई भी आर्टिकल 300 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। 300 वर्ड से अगर एक टर्म होता है इंस्टेंट आर्टिकल, मतलब आप अगर कोई आर्टिकल देखते हैं और आप क्लिक करते हैं उस आर्टिकल को तो वो फौरन खुल जाता है, तो वो होता है इंस्टेंट आर्टिकल। उस फौरन खुल जाता है और आपके सामने तुरंत खबर आ जाती है और आप वो खबर पढ़ने लगते हैं। और अगर वो इंस्टेंट आर्टिकल नहीं बन पाता है तो खबर खुलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तब तक यूजर चला जाता है। तो अगर वो क्राइटेरिया के हिसाब से आर्टिकल नहीं होगा तो वो इंस्टेंट आर्टिकल नहीं बनेगा, वो गूगल में नहीं आएगा, सर्च में नहीं आएगा। गूगल बोलेगा कि ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, ये अधूरा आर्टिकल है, ये क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, तो वो आर्टिकल आपका दिखाएगा नहीं। फेसबुक इंस्टेंट नहीं बनाएगा तो आपका नुकसान है। तो 300 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। और एक और पॉइंट है कि जो पहला पैराग्राफ होता है वो 180 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। Ma'am, there is a question from Nishtha once again. What she is trying to ask you is that if one wants to launch a website or a channel, what basic kind of news is actually required to launch it with? ओके ओके, निष्ठा आप किस टॉपिक पे चैनल लॉन्च करना चाहती है? मतलब आप इलेक्शन पे बेस रखना चाहती हैं या एंटरटेनमेंट से रखना चाहती हैं? Ma'am, for like if I think of launching a channel and I think उस टाइम पे जो सबसे heated I think conversation या जो news उस टाइम पे होगी, I believe मुझे उसके साथ proceed करना चाहिए। But for the long term, what I want to know, और
I'll get just back down to it. ओके ओके, अगर आप हॉट टॉपिक पे कोई वेबसाइट लॉन्च करती हैं, मान लीजिए आपने इलेक्शन पे कर दिया, तो जी। इलेक्शन कितने टाइम तक रहेगा? 1 कुछ to 2 महीनों तक, months. Yes, कुछ ma'am. महीनों तक, हाँ। और उसके बाद आपके पास आर्टिकल्स भी कम हो जाएंगे, कम क्या इलेक्शन के आर्टिकल्स तो रहेंगे नहीं, नहीं। और लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, है ना? Definitely. तो इसलिए ही वेबसाइट्स में अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं, ताकि हर फील्ड में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही है वो लोगों तक पहुंचाया जाए और उससे उनको खबर पे यूजर्स मिले। तो किसी एक टॉपिक पे अगर आप बना रही हैं तो आपको ऑब्वियसली एक टाइम के बाद बैकआउट करना पड़ जाएगा। Per jayega. Okay. So we have to have like a hypertextuality, or we can say a different kind of section to our website. So can we go for the long term run if we are हाँ, launching a website? हाँ हाँ, you get it right, Nisha. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. मैम हाउ डू यू प्रायोरिटाइज अ स्टोरी? कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हो कि ये शुड बी द लीड स्टोरी, दिस शुड बी द सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी? आप इसको कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? ये उस टाइम जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि टेलीविजन पे आप देखते हैं कि वो तुरंत ब्रेकिंग बनाने लगते हैं, कोई अगर इम्पोर्टेंट न्यूज आती है तो ब्रेकिंग बनाते हैं, एंकर बोलता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही प्रिंट में एक दिन बाद आता है तो उनकी राइटिंग का स्टाइल अलग होता है, उनके कंटेंट का स्टाइल अलग होता है। बट वेब पे ऐसा होता है कि आपको उसी टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और उसके साथ ही आपको उसके साइड आर्टिकल्स, साइड वाली चीजें भी बतानी होती हैं। जैसे कि बजट है, तो बजट में लास्ट टाइम बजट कैसा था, लास्ट टाइम क्या क्या हुआ था, क्या सस्ता हुआ था, क्या महंगा हुआ था, और उसके कंपैरिजन में इस बार क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको वेब पे तुरंत बतानी होती हैं। तो ये होता है, तो हम उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले बजट भी रिलीज हुआ और उसके साथ में कोई सलमान खान की मूवी का ट्रेलर भी आ गया, तो 2 इम्पोर्टेंट मूवी टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे यूजर्स आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा ट्रेंडिंग है, ट्रेंड हो रहा है बजट, तो हम बजट को इम्पोर्टेंस देंगे। बेसिकली डिजिटल पे यूजर इज एवरीथिंग, हमें यूजर के हिसाब से ट्रेंड्स सेट करने होते हैं, तो ये होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि एक वेबसाइट का नेचर होता है, अगर हमें किसी कॉज को हाईलाइट करना है तो हम उससे जुड़ी खबर को बताएंगे, उसे लीड में रखेंगे, तो ऐसा होता है। ओके मैम, एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? प्लीज आस्क। मैम ने हम लोग को 1 घंटा टाइम दिया था, शी हैज एक्सीडेड more than that. Thank you so much, ma'am, for that, for Not a being problem. patient with us. Okay, ma'am, I'll ask you a last question. Okay. And I ask this to every journalist. I heard in one very famous James Bond film that one of the villains had quoted that there is no better news than bad news. So is it true? बैड न्यूज, कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी खबर को नेगेटिव एंगल से दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने किसी पॉलिटिशियन की बुराई दिखा दी, अच्छाई की बजाय बुराई दिखाई, तो वो ज्यादा चलती है। आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो आई गेस हाँ, नेगेटिव स्टोरीज चलती हैं, बट बात यहाँ पे एथिक्स की आती है कि आप अपने एथिक्स फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली एथिक्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको बहुत सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टोरी भी नहीं कर सकते। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट गुड स्टोरीज का पोर्टल लॉन्च कर रही हैं, मतलब एक सेक्शन अलग से होता है कि पॉजिटिव स्टोरीज, गुड स्टोरीज। तो ऐसे होता है, मतलब इट्स अ मिक्सचर कि हम नेगेटिव साइड भी दिखा रहे हैं और पॉजिटिव साइड भी। बेसिकली मीडिया का रोल तो न्यूट्रल रहना ही होता है, बट एज बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो
हमें दोनों साइड ही दिखानी होती है। मैम व्हाट टाइप ऑफ एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स डू यू यूज फॉर चेकिंग की मतलब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसा आ रहा है और कहाँ हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है? हाँ, इसके लिए गूगल एनालिटिक्स होता है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं चेक करने के लिए कि हमारा आर्टिकल यहाँ पे अपीयर हो रहा है और कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती है ट्रैक करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द मंथ काउंट होता है कि हमारे किस आर्टिकल पे कितने यूजर्स आए हैं और उससे हमें कितना फायदा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्वियसली अपने कोई आर्टिकल बना रहे हैं उसमें यूजर्स ही नहीं आ रहे हैं तो फिर अगर उसको यूजर्स को देख नहीं पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है उसका। तो हमारे पास जो बेसिक होता है वो होता है गूगल एनालिटिक्स। उसमें ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल पे रियल टाइम यूजर्स कितने हैं और कौन से आर्टिकल पे रेफरल के थ्रू यूजर्स आए हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है और डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है। ये सारी चीजें, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है जो हमें गूगल फेसबुक से मिलता है, वो है ऑर्गेनिक। रेफरल होता है हम किसी आर्टिकल को किसी दूसरे ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। और डायरेक्ट होता है कि हमारे वेबसाइट पे डायरेक्ट कितने लोग आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स पे ट्रैक कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ट्रैक करने के लिए। और गूगल एनालिटिक्स पे हम एक मंथ के यूजर्स, उसके पेज व्यूज कितना हुआ है वो ट्रैक कर सकते हैं। उसने कितनी देर तक हमारे आर्टिकल पे रुका है वो भी देख सकते हैं। और वो तुरंत कितने यूजर्स तुरंत आर्टिकल से निकल गए वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Gaurav sir, are you there? Yes. Thank you so much, ma'am. Now it's time to wrap up. बहुत ही थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैम, बहुत ही मीनिंगफुल और इंटरेक्टिव सेशन था। I would confess, be very Thank you, frank thank you, with thank you you. that it is one of the most interactive session एकेडमिक्स को अपने आप बुलाते हैं फॉर लेक्चर्स। इंडस्ट्री से लोग अनफॉर्चुनेटली कम आ पाते हैं, तो बहुत कुछ हम लोग को प्रैक्टिकल जानने को मिला। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुकर सर को से कि वो मैम को एक इस सेशन का वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्लीज सर। Thank you very much, Gaurav sir. Thank you very much, Ishant sir, for first of all organizing such a wonderful webinar on the topic of web journalism. My thanks to Utkarsha madam for taking time out from her busy schedule. As I have told you earlier also, ma'am, that at this point of time you must be really busy because many things are happening in the country right now. Today only, let us for example say there has been a official a boycott the opening ceremony of the Winter Olympics. तो international relations पे हमारे क्या impact पड़ेंगे, तो I'm sure ये आपकी next lead जरूर होगी. And thank you very much, ma'am, for taking time out from your busy schedule. And yes, we are meeting virtually, no doubt about it. But in the days to come, we would like to invite you for maybe a whole day session. Physically at the campus itself, जहाँ पे आप हो सके तो हमारे बच्चों को please train करिए, उनको journalism has never been this interesting in India. So that will be from my side, ma'am. Thank you very much for being here. थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों से बात करना, आप सबसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Now we'll call it a day. Thank you all. Thank you so much. Thank you, students. Thank you, everybody. Now you can disconnect, please. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. Have a nice evening. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Welcome, Tanisha.